ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ریلیوں، سیمینارز اور تقریبات میں خواتین کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی پھیلانا ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ اس دن مختلف تقریبات، سیمینارز اور مظاہروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلی بار امریکہ میں خواتین نے اپنی تنخواہ کے مسائل کے متعلق احتجاج کیا، لیکن ان کے اس احتجاج کو گھڑ سوار دستوں کے ذریعے کچل دیا گیا۔ پھر 1908 میں امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی نے ویمن نیشنل کمیشن بنایا اور فروری کی آخری تاریخ کو خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جانے لگا۔ عالمی یوم خواتین سب سے پہلے 1909 میں 28 فروری کو امریکہ میں منایا گیا۔ پہلی عالمی خواتین کانفرنس 1910 میں کوپن ہیگن میں منعقد کی گئی۔ 8 مارچ 1913 کو یورپ بھر میں خواتین نے ریلیاں نکالی اور پروگرام منعقد کیے۔ اب برسوں سے 8 مارچ کو عالمی سطح پر یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ چین، روس، نیپال، کیوبا اور بہت سے ممالک میں اس دن خواتین ورکرز کی چھٹی ہوتی ہے۔ دیگر ممالک کی طرح برصغیر میں بھی یہ دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، لازوال رشتے رکھنے والی عورت کی خدمات کا احترام کرنا ہی اس کے اصل مقام کو تسلیم کرنا ہے۔ ویمن ڈے پر باہمت خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے بائک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس، سپورٹ بورڈ پنجاب کی جانب سے امام عالم روڈ سے حسین چوک تک ریلی نکالی گئی ہے۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا، ڈپٹی کمشنر لاہور، سیکرٹری سپورٹ اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب شاہد زمان اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے، جبکہ طالبات، ریسکیو 1122 سمیت دیگر محکموں سے ویمن بائکرز اور کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے زاہد عابد سے۔ زاہد۔ جی بالکل، یوم خواتین کے حوالے سے دنیا بھر کی طرح اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح لاہور میں بھی مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور معاشرے کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ انہیں معاشرے کا برابر کا شہری سمجھا جائے تاکہ معاشرہ مکمل طور پہ ایک متوازن طور پر ترقی کر سکے۔ اس وقت ایک ضلع انتظامیہ کی جانب سے بائک ریلی اور میراتھن ریس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مختلف طبقہ فکر کی خواتین شرکت کر رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اس کے پارٹیسپینٹ موجود ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ویمنز ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ وہ تمام اچیومنٹ جو ایک آرڈنری وومن نے ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے کی ہیں، ان سب اچیومنٹس کو ہم لوگ یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی تقریبات کرنے سے آپ کا جو پیغام ہے، جو آپ کی سوچ ہے، وہ لوگوں تک پہنچ پاتی ہے؟ صحیح بالکل، اس طرح کی تقریبات سے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے عورت کے اندر کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور اس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جی بالکل، آج کی اس تقریبات میں ٹریفک وارڈنز، پنجاب پولیس اور سول سوسائٹی کی خواتین بھی شریک ہیں۔ ذرا پنجاب پولیس کی خواتین بھی موجود ہیں، ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر خواتین کو آگے آنا چاہیے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے خواتین کے لیے۔ شکریہ۔ کچھ اور خواتین بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر ایک کو خود مختار ہونا چاہیے، اپنے لیے خود سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ڈپارٹمنٹ آیا ہے، تو اگر ہم اس ڈپارٹمنٹ میں آئے تو ہمارے پہ بھی کچھ فرض ہے کہ ہم جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے لیے کچھ کہہ سکیں، مطلب کہ ان کے لیے کچھ ایک آئیڈیل بن سکیں، وہ ہمیں دیکھ کے کچھ اور سیکھیں۔ جی بالکل، اسی قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے جس میں خواتین پرعزم ہیں کہ وہ اپنا جو کردار ہے مثبت وہ معاشرے میں ادا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ صرف معاشرہ انہیں موقع دے، بہتر حالات کار دے تاکہ ان کی جو صلاحیت ہیں اس سے نہ صرف یہ ملک و قوم فائدہ اٹھا سکے بلکہ معاشرے کے لیے بھی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ زاہد آپ کا۔ اور کیونکہ عمران آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی شعبہ جینڈر اسٹڈیز کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن پر واک کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد اختر، فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی کثیر تعداد نے اس میں شرکت کی۔ شرکا نے باہمت خواتین کی ملک کے لیے خدمات کو بھی خوب سراہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عاطف سے۔ عاطف، پرویز آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج شہر بھر میں یوم خواتین جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف تقاریب جو ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی واک کا اہتمام کیا گیا ہے اور وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے اس واک کی صدارت کی۔ جینڈر اسٹڈیز کے زیر اہتمام واک نکالی گئی تھی۔ خواتین کو سلام ہے جو
बहुत हकूक जो है इस्लाम ने बहुत सारे हकूक दिए हैं, ये कहना था डॉक्टर नियाज अहमद का। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर जो सरबराह हैं वो खवातीन हैं। इसके साथ साथ खवातीन को मजीद मेहनत करके आगे बढ़ना है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकाबला करने की सलाहियत हमारी खवातीन रखती हैं। हमारी डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस, डायरेक्टर रीजनल इंटीग्रेशन सेंटर समेत दीगर शोबों में खवातीन जो हैं वो फोर फ्रंट पे हैं और वो लीड कर रही हैं। हमें मुसावात पर यकीन रखते हैं, और ये कहना था वाइस चांसलर का। और इस मौके पर डॉक्टर राना का कहना था कि यूनिवर्सिटी में खवातीन का अहम ओहदे पर फायज होना खुशाइंद है। वाइस चांसलर की जानिब से खवातीन असातिज़ा को अहम जिम्मेदारियां देना काबिल तहसीन है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की PIC आमद। विमेन डे के हवाले से खवातीन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को गुलदस्ते पेश किए गए। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि हर शोबा ज़िंदगी में खवातीन की खिदमात और सलाहियतों ने अहमियत तस्लीम कराई है। पूरे पंजाब से PIC में अमराज कल्ब में मुब्तला मरीज आते हैं, शफायाब होते हैं। कमिश्नर लाहौर का मज़ीद क्या कहना था, बताएंगे इमरान अकबर जी। इमरान। बिल्कुल, खातून के आलमी दिन के मौके पर कमिश्नर लाहौर ने PIC अस्पताल का दौरा किया और खातून डॉक्टर्स को खराज तस्लीम और गुलदस्ते पेश किए हैं। आलमी यौम खातून कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने PIC आमद हुई है, जिसमें खातून डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को गुलदस्ते पेश करते हुए खिदमात को सराहा गया और कहा कि आज सिर्फ आपकी खिदमात और बेहतरीन किरदार को खराज तस्लीम पेश करने आया हूँ, जबकि हर शोबा जिंदगी में खातून की खिदमात और सलाहियतों ने अपनी अहमियत तस्लीम कराई है। पूरे पंजाब से PIC में अमराज कल्ब में मुब्तला मरीज आते हैं, जबकि शफायाब होते हैं, और जिस पर बड़ा किरदार खातून डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ का है। जी इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का भी खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम सामने आया है। कहती हैं दीन इस्लाम औरतों के हकूक़ और बराबरी का दर्स देता है। क्या में पाकिस्तान में खवातीन की कोशिश काबिल फ़ख्र है। बतौर खातून इदारे में सरबराह होने पर फ़ख्र भी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें इस खबर के हवाले से कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम सामने आया है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर दुनिया में तमाम जो खवातीन हैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आई बिलीव दैट वुमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक औरत ही दूसरी औरत को मजबूत बना सकती है। इस्लाम मज़हब खवातीन के हुकूक को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। अगर हम हज़रत खदीजा और हज़रत फातिमा का एग्जाम्पल देखें तो भी हमें पता चलता है कि विमेन एम्पावरमेंट कितना इम्पोर्टेंट रहा है इस्लाम में। मैं खुद जो है, मुझे फ़ख्र है एक औरत होने पर, और मैं तमाम जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें और अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि आपको किसी का मोहताज ना बनना पड़े, और फिर आप जो चाहें अचीव करना वो कर सकें। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद है। सामिया, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का खातून के आलमी दिन पर पैगाम सामने आया है, क्या अपडेट्स हैं, तफसीलात से बताएगा। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का खवातीन के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम आया। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खवातीन को सबसे पहले मुबारकबाद पेश की गई है। उन्होंने बताया कि दीन इस्लाम औरतों के हकूक और बरादरी का दर्स देता है। इस्लामी तारीख में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और दीगर खवातीन को बहुत एहतराम बख्शा गया है। क़याम पाकिस्तान में भी खवातीन की जद्दोजहद को काबिल फ़ख्र है। एक औरत होने के नाते बच्चों के इदारे का सरबराह होने पर फ़ख्र महसूस करती हूँ, चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया सामिया आपका। और वहाँ डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर का खातून के आलमी दिन पर पैगाम भी सामने आ गया। कहती हैं कि लाहौर की इंतजामी तारीख की दूसरी खातून डिप्टी कमिश्नर होना बाइस फ़ख्र है। खवातीन को ज़िंदगी के हर शोबे में आगे लाने के लिए अपना किरदार अदा करूँगी। ज़रूरी नहीं कि रोशनियाँ चरागों से हों, बेटियाँ भी घर में उजाला करती हैं। मज़ीद क्या कहती हैं बताएंगे इमरान अकबर जी। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, खातून के आलमी दिन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने आज पैगाम दिया है कि आज खातून की मुआशी, मुआशरती, समाजी और सियासी खिदमात को आज तस्लीम पेश करने का दिन है, जबकि मैं आज फिर पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में हिस्सा डालने वाली खातून को सलाम पेश करती हूँ। लाहौर की इंतजामी तारीख की दूसरी खातून डिप्टी कमिश्नर होना बाइस फ़ख्र समझती हूँ, जबकि मैं
عزم کرتی ہوں کہ خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں آگے لانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گی اور ہر بچہ اسکول میں خصوصی مہم میں بچوں خصوصاً لڑکیوں کو اسکول لانے پر کام کیا جائے گا. اس وجہ سے ڈپٹی کمشنر لاہور کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ خواتین کو ہنر سکھانے کے لیے بھی جامعہ آگاہی پروگرام لایا جا رہا ہے. اس وجہ سے خواتین کے سماجی تحفظ کے لیے تمام محکموں کو ساتھ مل کر کردار ادا کرنا ہوگا اور منظم اور مضبوط کریں گے. ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہوں, بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کرتی ہیں. جی بہت شکریہ عمران آپ کا. تو وہیں ریسکیو کی جانب سے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے مثالی کارکردگی دکھانے والی ریسکیوئرز خواتین کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا بھی اعلان کیا. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں ریسکیو 1122 کی جانب سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا. پنجاب بھر سے تمام ریسکیورز خواتین کی تقریب میں آن لائن شرکت. خواتین اور بالخصوص ریسکیورز خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی کارکردگی کو سراہا گیا. ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ تعمیر پاکستان سے تکمیل پاکستان تک خواتین کا کردار کلیدی ہے. ایمرجنسی سروسز میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا. فیمیل ریسکیورز اور ریسکیو آفیسرز, میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مردوں کے شانہ بشانہ نہ صرف فیلڈ میں ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا بلکہ کنٹرول روم کے اندر بھی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہیں اور فیلڈ میں بھی باقاعدہ مینجمنٹ کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, چاہے وہ ہمارا ضلع ہو جس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کے طور پہ پرفارم کر رہی ہیں, اسی طرح سے ہماری مختلف ونگز ہیں ان کو ہیڈ کر رہی ہیں. ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ریسکیورز خواتین کا کہنا تھا کہ خواتین کسی سے کم نہیں, صرف عزم اور حوصلہ چاہیے. خواتین اپنی مہارت سے ہر کام سر انجام دے سکتی ہیں. فیمیلز کے لیے ہر کام ایزی ہے, صرف آپ نے اپنا ارادہ کرنا ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو آپ کر سکیں گی. آپ کو انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی اور مجھے فخر ہے کہ میں 122 کا حصہ ہوں. میں سلیوٹ پیش کرنا چاہوں گی اپنے اکیڈمی کے اپنے جو ہیڈ آفیسرز ہیں, جو فیمیلز ہیں اسپیشلی, ان کو جنہوں نے ہمیں اتنا گائیڈ کیا اور فیلڈ میں جا کے اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, جن میں خود بھی شامل ہوں. ہم ویریس ایسے انسیڈنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں جو کہ اگر کوئی دوسرا لے مین دیکھے تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. ڈاکٹر رضوان نصیر نے مثالی کارکردگی کی حامل ریسکیورز خواتین کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے اور ڈرائیونگ کے لیے خصوصی ٹریننگ کلاسز شروع کرنے کا اعلان کیا. مطالبات پورے نہ ہونے پر ٹاؤن ہال میں ملازمین کا احتجاج جاری ہے. مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی جاری ہے, جبکہ یوٹیلٹیز اور بگ سٹی الاؤنس شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ میں نئی اسامیوں کی منظوری دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. مزید تفصیلات لیں گے عمران اکبر سے. عمران بتائے گا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جی بالکل, عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر مرد بھی جو ہے میدان میں آ چکے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں احتجاج کر ڈالا ہے. اس والے سے جو اس وقت ٹاؤن ہال مرکزی یونین ہے سی بی اے کی, یہاں پہ گلنواز خان کی سربراہی میں تمام جو ورکرز ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, 5000 سے زائد ملازمین ہیں جنہوں نے آج اپنے حقوق کے لیے یہاں پہ احتجاج کیا ہے. ان سے ہی بات کریں گے. گلنواز صاحب, باہر دیکھا جائے پورے شہر میں تو عورت مارچ ہے اور خواتین بھی اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہیں, مرد بھی اپنے حقوق کے لیے نکلی ہیں. کون سے حقوق ہیں جو آپ کے پورے نہیں ہو رہے؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں خدمت گروپ سی بی اے یونین آپ کو پتہ ہے کہ کامیاب ہوئی تھی. فوری طور پہ ہم نے چارٹر اور ڈیمانڈ دیا تھا انتظامیہ کو, لیکن انتظامیہ ہماری اتنی بے حص ہے. ہماری انتظامیہ نے 10 مہینے کے گزرنے کے باوجود ہمارے چارٹر اور ڈیمانڈ پہ کوئی کارروائی نہیں کی. اگر عورتیں اپنے حقوق کے لیے نکل سکتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے, ہم بھی نکلیں گے اور نکلیں انشاءاللہ. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے 27 نکات تھے چارٹر آف ڈیمانڈ میں, کوئی بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. تو جب ایڈمنسٹریٹر کارپوریشن جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپروول بھی دی ہے ان کو, اس کے باوجود ہمارے یہاں کے افسران نے ان کے حکامات کو ہوا میں اڑا دیا. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس لیے اگر عورتیں جاگ رہی ہیں تو انشاءاللہ کارپوریشن کے مرد بھی جاگ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم جاگیں گے اور اپنے حقوق حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. چارٹر آف ڈیمانڈ کا معاملہ ہے اور چارٹر آف ڈیمانڈ جب تک پورے نہیں ہوں گے وہ ہم اندر یعنی کہ یہاں پہ اپنے احتجاج کریں گے اپنے حقوق کے لیے. گلنواز خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر عورتیں جو ہے میدان میں آ سکتی ہیں تو مرد بھی کسی سے کم نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور ناصرین, لاہور پارکنگ کمپنی واسا اور پی ایچ اے کے ترقیاتی کاموں کی تحقیقات کا معاملہ ہے.
एंटी करप्शन ने तरक्याती कामों, ठेकों और दीगर अखराजात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इस राय के मुताबिक रिकॉर्ड की छानबीन के बाद मुबैना करप्शन का अंदाजा भी लगाया जा सकेगा। तो सिला शबीर हैदर से जानते हैं। शबीर, आगाह कीजिएगा। जी, एंटी करप्शन ने साबिक दौरे हुकूमत में लाहौर पार्किंग कंपनी, वासा और PHA के तरक्याती कामों की तहकीकात का आगाज कर दिया और इस पर अजरा का कहना है कि एंटी करप्शन ने लाहौर पार्किंग कंपनी से साल 2018 से लेकर आज तक के ठेकों का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है और इन्हीं के साथ वासा से भी साल 2018 से आज तक के तमाम तरक्याती कामों और अखराजात का रिकॉर्ड हासिल किया है और इन्हीं के साथ जो है PHA से साल 2018 से आज तक के तमाम टेंडर, तरक्याती कामों और अखराजात का रिकॉर्ड हासिल किया गया है और इस पर जो एंटी करप्शन ने 5 सालों में होने वाले तमाम तरक्याती कामों और उनके साथ साथ जारी होने वाले फंड और टेंडर और अखराजात की जो छानबीन का अमल जो है वो शुरू कर दिया है और तमाम रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन के बाद इसमें मुबैना तौर पर की जाने वाली खुदबुद का अंदाजा लगाया जा सकेगा और इस हवाले से एंटी करप्शन जराये का कहना है तहकीकात का दायरा कार भी जो है वो वसी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया सरकारी नरखों के अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। मार्केट में सब्जियां, फल मनमानी कीमतों पर फरोख्त होने लगी हैं। अदरक 650 के बजाय 750, लहसुन 350 के बजाय 450, प्याज 154 के बजाय 170 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। फलों की बात करें तो फलों में अनार बदाना 850, सेब 380, अमरूद 170 रुपये किलो तक बिकने लगे। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो अशिया ज़रूरिया के सरकारी रिलीज जारी किए गए उसमें जो सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, 2 फल महंगे किए गए। सब्जियों में आज सब्जी मिर्च जो है 10 रुपये महंगी करके 105 रुपये में कर रखी गई, लेकिन मार्केट में 130 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। आलू 2 रुपये महंगा करके 47 रुपये में कर किया गया, मेथी 3 रुपये महंगी करके 53 रुपये, खीरा 5 रुपये महंगा करके 58 रुपये, पालक 6 रुपये महंगी करके 40 रुपये, फूल गोभी 11 रुपये महंगी करके 64 रुपये। फलों में केले की कीमतों में जो है गैर मामूली इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। 5 रुपये महंगा करके 165 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का केला जो है वो 280 से 300 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खजूर ईरानी 10 रुपये इजाफे के बाद 480 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ब्रायलर की कीमतों में जो है वो कमी देखने को मिल रही है क्योंकि शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी जो है कम की गई है। लोगों की कुव्वत खरीद से ब्रायलर जो है बाहर हो चुका है। 23 रुपये कमी के बाद 594 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई और अंडे आज छठे रोज़ भी 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे किए गए हैं और 241 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फल, सब्जियाँ, गोश्त जिधर भी देखो हर चीज़ महंगी है और दुगनी महंगी हो रही हैं। तो हर आदमी की गरीब की पहुँच से बहुत दूर है। कोई आदमी ना हांडी पका सकता है ना चूल्हे, सबके ठंडे हो चुके हैं। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सब्जियां, फल, गोश्त, अंडे कुछ भी अब जो है वो अवामी कुव्वत ख़रीद में नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे खाम माल की दरामद में मुश्किलात का सामना है। होंडा अटलस का 9 मार्च से प्लांट बंद करने का फैसला है और सर्कुलर के मुताबिक 9 से 31 मार्च तक प्लांट बंद रहेंगे। होंडा अटलस कार साज का कहना है कि प्लांट खोलने के लिए हवाले से फैसला आइंदा के हालात देखकर करेंगे। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, होंडा एटलस कार की जानब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें इस चीज़ की वजाहत की गई है कि दरामदी माल की हसूल में मुश्किलात के पेश नज़र वो अपना प्लांट शट डाउन कर रहे हैं और 9 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये शट डाउन प्लान कर दिया गया है। उस सर्कुलर में कहा गया है कि चूँकि दरामदी खाम माल की इंपोर्ट पर जो इस वक्त मसाइल पेश आ रहे हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर जारी नहीं रख सकते, जिसकी वजह से अपना प्लांट शट डाउन किया जा रहा है। इसका 31 मार्च तक का हाल ऐलान किया गया है। ताहम 31 मार्च के करीब जाकर दोबारा इस चीज़ को नजरसानी की जाएगी और हालात को देखते हुए आइंदा का फैसला किया जाएगा। इससे पहले भी कई कंपनी इस किस्म की इक़दामात कर चुकी हैं। ताहम ये एक बड़ा कारसाज इदारा है जो कि अपनी प्रोडक्शन 9 मार्च से बंद कर रहा है, जिसकी वजह से लाजमी तौर पर ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिब। अहम खबर यह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का यह मामला सामने आ गया है। बलोचिस्तान पुलिस की टीम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंच चुकी है। मजीद जानते हैं हसन रजा से। हसन रजा, आगाह कीजिएगा।
हसन से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का ये मामला है। बलूचिस्तान पुलिस की टीम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंच गई है। बलूचिस्तान पुलिस की टीम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंच गई है। आपको बताएं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का ये मामला सामने आ गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान पुलिस की टीम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंच गई है। रैकर्स पुलिस अफसरान की आईजी पंजाब से मुलाकात रंग ले आई है। डीएसपी आदिल रशीद को रैंकर्स अफसरान की मुलाकात देखने का हुक्म दे दिया गया है। रैंकर्स अफसरान ने पीएसपी अफसरान के रवैये के हवाले से शिकायत की थी। मुदस्सिर हुसैन साथ है, तफसीलात बताइएगा मुदस्सिर। जी बिल्कुल, रैंकर अफसरान की आईजी पंजाब से मुलाकात जो है वो रंग ले आई है। डीएसपी आदिल रशीद को PSO2 लगाया गया था, उसके बाद जो है वो रैंकर अफसरान के तमाम मामलात आईजी पंजाब ने आदिल रशीद को देखने का जो है हुक्म दे दिया है। आईजी पंजाब ने रैंकर पुलिस अफसरान के मामलात और मसाइल PSO2 आदिल रशीद को सौंप दिए हैं। रैंकर अफसरान अपने मामलात और मसाइल PSO2 आदिल रशीद को बताएंगे। PSO2 आदिल रशीद रैंकर के मसाइल और मामलात आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को बताएंगे। आईजी पंजाब मुतल्लिका अफसरान को राय देकर रैंकर अफसरान के मसाइल हल करेंगे। PSO1 मोहम्मद अफजल जो PSP अफसरान के मामलात को देखेंगे। PSP अफसरान के मामलात के हवाले से आईजी पंजाब की डायरेक्शन PSO1 देंगे। पंजाब पुलिस के रैंकर अफसरान ने चंद रोज पहले आईजी पंजाब से मुलाकात की थी और रैंकर अफसरान ने PSP अफसरान के रवैये के हवाले से काफी शिकायत के अंबार लगा दिए थे। इसके बाद जो है आईजी पंजाब ने पहली दफा एक रैंकर अफसर जो कि DSP है उसको PSO2 तैनात कर दिया है ताकि जो रैंकर के तमाम मसाइल हैं उनके जरिए हल हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौका पर ट्रेनों में रश लग गया। रेलवे इंतजामिया के ट्रेनों में सिलेंडर्स और ममनू अशिया की रोकथाम के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। ट्रेनों में सिलेंडर्स ले जाने पर पाबंदी आयद की गई। चेकिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि ज़ायरीन की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें लाहौर और फैसलाबाद से चलाई जाएंगी। मज़ीद तफसीलात देंगे फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौका पर ट्रेनों में जो है वो रश बढ़ गया है, जिसके पेश नज़र रेलवे इंतजामिया की जानिब से रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जबकि दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनों में गैस सिलेंडर, आतिशगीर मादे और ममनू अशिया ले जाने पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी है। और इस हवाले से रेलवे इंतजामिया की जानिब से ट्रेनों में LPG सिलेंडर और ममनू अशिया की रोकथाम के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। रेलवे पुलिस के जवान और ट्रेन स्टाफ ट्रेनों में सरप्राइज चेकिंग करेंगे। सेवन शरीफ जाने वाले ज़ायरीन को गैस सिलेंडर साथ लेकर ना जाने की हिदायत की गई है। गैस सिलेंडर बरामद होने पर कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से रेलवे पुलिस की जानिब से जो है वो सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो लाहौर और फैसलाबाद से चलाई जा रही हैं। पहली स्पेशल ट्रेन जो है जो सेवन शरीफ जाएगी वो आज फैसलाबाद से शाम 6 बजे जो है वो रवाना होगी। जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद 7 के लिए आज 8 मार्च को रात 9 बजे रवाना की जाएगी। सेवन शरीफ के लिए तीसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो लाहौर से कल 9 मार्च को दिन 12 बजे रवाना होगी। और ये तीनों ट्रेनें जो हैं उसके बाद 7 से 14 मार्च को जो है वो रवाना होगी, ताकि जो ज़ायरीन यहाँ से मुख्तलिफ शहरों से जो है वो सेवन शरीफ जा रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। फहद, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए हैं। डॉक्टर्स ने काम बंद करके प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। OPD बंद होने से मरीज इलाज के लिए रुल गए हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, बताइएगा, एक बार फिर से एहतजाज शुरू कर दिया गया यंग डॉक्टर्स की जानिब से। क्या पहले मुतालबात पूरे नहीं किए गए, दोबारा से एहतजाज शुरू कर दिया उन्होंने? जी बिल्कुल, ये लाहौर जनरल हॉस्पिटल के यंग डॉक्टर्स हैं और आज इनकी जानिब से मेडिकल यूनिट 2 के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर फारूक, उनके खिलाफ जो एहतजाज है ये किया गया है। उनकी जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो प्रोफेसर साहब हैं इनका यंग डॉक्टर्स के साथ रवैया अच्छा नहीं है और वो इनके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और उनकी जानिब से आज OPD में मुकम्मल तौर पे जो है ये मेडिकल यूनिट 2 का बाइकआउट किया गया और मरीजों को भी चेकअप नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो दूर दराज से मरीज आए थे उनको भी इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर यंग डॉक्टर्स की जानिब से प्रिंसिपल ऑफिस का भी घेराव किया गया और मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर जो प्रोफेसर हैं मेडिकल यूनिट 2 के उनको जो है ये तब्दील किया जाए। और जब तक उनको तब्दील नहीं किया जाएगा यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो मरीजों का इलाज मुआवजा है वो नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो प्रोफेसर है। बहुत शुक्रिया बिलाल।
खबर यह भी है कि सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर का कारकुनी के दौरान होने वाले हादसात की बढ़ती शरह का नोटिस मजदूरों और कारकुनों को ज़रूरी हिफाजी सामान फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है, जबकि चीफ इंस्पेक्टर माइंस को ऑनलाइन इंस्पेक्शन डैशबोर्ड को 1 माह के अंदर फ़ाल करने का हुक्म भी दिया गया। मज़ीद तफसीलात देंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। मादनियात बाबर अमान बाबर की जानिब से जो कानकनी के दौरान होने वाले हादसात की शरह में इजाफा हुआ, उसके बाद नोटिस लिया गया और तमाम जो इससे मुतल्लिका अफसरान और जो स्टाफ है उसे एक हदायतनामा जारी किया गया है, जिसमें मजदूरों और कारकुनों की हिफाजत के लिए तरजीही तौर पर जो है वो इक़दाम करने का कहा गया है। और इस हवाले से सेक्रेटरी मादनियात का चीफ इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस की जानिब से कारकुनों की हिफाजत के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम न करने पर भी इजहार बरहमी का जो है वो इजहार किया गया और जवाब तलबी भी की गई है। सेक्रेटरी मादनियात ने चीफ इंस्पेक्टरेट माइंस को जदीद तर्ज और साइंसी बुनियादों पर कारकुनी पर अमल दरामद जो है वो करवाने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि जो कारकुनों की हिफाजत और फलाह व बहबूद के लिए मुतल्लिका कवानीन है, इन पर सख्ती से जो है अमल दरामद करवाया जाए। पट्टादारों की जानिब से मुतल्लिका कवानीन की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी मादनियात की जानिब से हफ्तावार कानूनी हादसात की रिपोर्ट भी बनाने का जो है वो इक़दाम दिए गए हैं, ताकि हफ्ते में होने वाले जो हादसात हैं और उनसे मुतालिक लिए जाने वाले इक़दाम पर भी जो है वो आगाही मिल सके। इस हवाले से सेक्रेटरी मादनियात की जानिब से अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। महकमा स्कूल एजुकेशन की स्कूल्स में सफाई मुहिम शुरू करने की हिदायत है। हफ्ते में 1 लेक्चर सफाई की आगाही से मुतालिक होगा, तो वहीं तलबा को अपनी और स्कूल की सफाई से मुतालिक आगाही भी दी जाएगी। अच्छा इक़दाम सामने आया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की स्कूलों में सफाई मुहिम शुरू करने की हिदायत की गई है। हफ्ते में 1 लेक्चर सफाई की आगाही से मुतालिक भी होगा। तलबा को अपनी और स्कूल की सफाई से मुतालिक आगाही दी जाएगी। आपको अपडेट करें कि हफ्ते में 1 लेक्चर सफाई की आगाही से मुतालिक होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की स्कूलों में सफाई मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि तलबा को अपनी और स्कूल की सफाई से मुतालिक आगाही भी दी जाएगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ सरकार में मुदाखलत और रोड बंद करने का केस है और मुकदमात में नामजद मुल्ज़मान की सीसीटीवी कैमरों की मदद से शनाख्त का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की रैली के अख्ताम पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान भी है। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताया कि इन मुल्ज़मान के बारे में। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की रैली में शरीक रहनुमा और कारकुनों पर दर्ज मुकदमात का ये मामला है। रोड ब्लॉक और रियासत मुखालफ बयान देने वाले रहनुमाओं कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ऐसा कहना है पुलिस राय का। पुलिस ने मुकदमात में मुलव्विस रहनुमा और कारकुनों से सीसीटीवी कैमरों की मदद से शनाख्त जो है उनकी कर ली है और तहरीक इंसाफ की रैली के इख्तिताम पर जो है वो गिरफ्तार किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, पुलिस राय का ऐसा कहना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का प्लान है। इमरान खान की क़यादत में आज समान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकाली जाएगी। रैली की रूट पर 10 मकामात पर इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन अली, बताइएगा इस हवाले से। जबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपनी इलेक्शन कम्पेन का बाकायदा आगाज़ लाहौर से कर रही है। 1 बजे के करीब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की क़यादत में ज़मान पार्क से रैली निकलेगी, जो कनाल रोड से होती हुई ज़मान पार्क से दाता दरबार पर पहुंचकर जो है इख्तिताम पजीर होगी। इस दौरान फिरोजपुर रोड पर जो है 10 इस्तकबालिया कैंप भी बनाए गए हैं। अगर पहला कैंप जो मुल्तान रोड पर बनाया गया है, जबकि दूसरा कैंप पत्थर बाज़ार इचरा मार्केट और तीसरा जो है इचरा बाज़ार, और जबकि इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और कंट कचहरी में भी इमरान खान के इस्तकबालिया कैंप जो हैं वो बनाए गए हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी के पेश नज़र इमरान खान खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में रैली की क़यादत करेंगे और इमरान खान खिताब भी कारकुनों से गाड़ी के अंदर रह कर ही करेंगे। इसी सिलसिले में पीटीआई की जानिब से गुज़िश्ता रात से ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी। कंटेनर जो है इमरान खान का पीटीआई का जो कंटेनर है वो भी तैयार कर लिया गया है। कंटेनर में प्रॉपर जो है साउंड सिस्टम लगा दिया गया है, जिसमें जो है कारकुनान का लहू जो है वो गरमाया जाएगा। जबकि पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, वो भी कंटेनर से ही कारकुनान की जो है वो क़यादत करेंगे। जबकि अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो लिहाजा पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को ख़त लिखा गया था, जिसमें
PTI की कुछ सिक्योरिटी रैली को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए इस्तदा की थी, जबकि उस खत के जवाब में महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से एक मरासला जारी किया गया था, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 8 मार्च को इंतखाबी ख़वातीन के आलमी जो है दिन के हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात की जा रही हैं और मुख्तलिफ इसी तरह से मुख्तलिफ तकरीबात जो है वो की जा रही हैं। लिहाजा इस वक्त मुल्क के जोन से सिक्योरिटी के ऐसे मामला आते हैं कि किसी भी सियासी इज्तिमा जो है वो किया जाए, जबकि अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो ट्रैफिक को इंतजामात को मामूल पर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ताहाल कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए, जबकि उनकी जानिब से जो यही कहा गया है कि जहाँ से जोन से ये रैली गुजरेगी उसी वक्त जोन से डाइवर्जन जो है वो लगा दी जाएंगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की क़यादत में 1 बजे के करीब यहाँ से रैली जो है वो निकलेगी और जो दाता दरबार जो है जाकर इख्तिताम पजीर होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। औरत मार्च के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर पुलिस के 400 एहलकार औरत मार्च की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं, जबकि औरत मार्च के तमाम रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद भी कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि औरत मार्च के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर पुलिस के 400 एहलकार औरत मार्च की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। औरत मार्च के तमाम रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, तो वहीं दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक टू गेट्स भी नस्ब किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और औरत मार्च के हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं लाहौर पुलिस के 400 एहलकार औरत मार्च की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। आपको अपडेट करें कि औरत मार्च के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस के 400 एहलकार औरत मार्च की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं, जबकि औरत मार्च के तमाम रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद भी कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। 400 एहलकार औरत मार्च की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। औरत मार्च के तमाम रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद किया गया है। आपको बता रहे हैं, औरत मार्च के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर पुलिस के 400 एहलकार औरत मार्च की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। औरत मार्च के तमाम रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।